an atom could be halogen, okay, and halogen covers any member from group number 7, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. Okay, or group of atoms mean two or more atoms are combined together to form a functional group. ठीक है, it could be OH, CHO, COOH. All these functional groups and many others give organic compounds their characteristics, chemical or physical properties. Okay, now chemical properties mean the way organic compounds react. What is an alkyl group? As we know that a simple organic compound is methane, it contains a single carbon with 4 hydrogen atoms attached to it. Now, if we remove one hydrogen from this methane, it becomes an alkyl radical or a methyl group, and that is CH3, and this is the space for the attachment of other groups. It could be a functional group or it could be other carbon chains. Why functional groups are important? Because it serves as the basis for naming organic compound. अब नेमिंग यहाँ पे कैसे होगी? आपको पता है कि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपके पास C1 से सो ऑन C2, C3 एंड सो ऑन आपके पास वेरी करे होती है कार्बन चेन्स. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन चेन आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं. अगर आपके पास C1 है तो इट वुड बी मीथेन, अगर आपके पास C2 है तो वो इथेन होगा, C3 है तो वो प्रोपेन होगा एंड सो ऑन. क्लासिफिकेशन इनटू क्लासेस. अब आपके पास क्लासेस कैसे होती हैं? जैसे आपको यहाँ पे यू कैन सी कि आपके पास कुछ क्लासेस गिवन है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स एक्सेट्रा. ओके, तो आप फंक्शनल ग्रुप को देख के, नेचर ऑफ द चेन को देख के आप उनको क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हो, उनको प्लेस कर सकते हैं. इनहैंस रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी क्या होती है? किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है, जो पावर है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी. ठीक है, तो जब आपके पास एक स्ट्रेट चेन में आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप फॉर एग्जांपल लगा हुआ है, ओके, तो अब देखें डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम आपके पास जो चेन है वो मजीद रिएक्टिव हो सकती है. आपके पास जो एक नॉन रिएक्टिव या आपके पास एक जो लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोर रिएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है. ओके, तो इस तरह से आपकी रिएक्टिविटी भी एनहांस होती है. वी विल डिस्कस क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपके पास सिंपलेस्ट वन जो है वो अल्केन है. अल्केन में आपके पास वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इस चेन में, इस ग्रुप में आपके पास वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जिनमें थ्रू आउट द चेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है बिटवीन टू कार्बन एटम्स. ओके, in an alkane no double or triple bond is present in the chain. Okay, so if we talk about the suffix like the naming of organic compound, we will add "ane" at the end of an alkane. For example, if I follow this trend, CH3, CH3, as you can see two carbon atoms are present in this chain, so it would be, the root name would be eth, okay, eth, and I will now add ane, ethane. Okay, now secondly I will talk about alkene. In an alkene the carbon chain contains at least one double bond between two carbon atoms. As you can see here, two adjacent carbon contains a double bond between them. So, and a suffix "ene" will be added at the end of an alkene. For example, CH2 double bond CH2. This is an alkene. As you can see, a double bond over here. Now, as you can see, two C1 and C2, two carbon atoms are present in this chain. So, it would be eth, the root, and the suffix "ene" will be added, ethene. Okay. Now, if we talk about alkyne, the third group of organic compounds, three bonds are present between two adjacent carbon atoms, and a suffix "ine" will be added in this in its name. C1, 2, 3. C. This is ethyne.
ethyne. Okay, now let's talk about alcohol. It is a functional group that contains OH in its chain. Okay, so CH3 and OH. This is simply alcohol. As a single methyl atom is present here, so it would be methyl alcohol, or you can also add suffix "ol", so we can name here methanol. Methanol. Okay. Next one is ether. In an ether, the hydrogen of an alcohol is simply replaced by another alkyl group, and in order to distinguish between two alkyl groups within a chain, we will add R and R dash to the same alkyl chain, or you can also say R1 or R2, because it is not important both chains are same, they could be different as well. So R, I will say CH3, the R or R1, O is the functional group, and R dash would be CH2, CH3. So as you can see, one methyl and one ethyl group is present within this chain, within this ether. So it would be ethyl, methyl, ether. Okay, okay, the suffix "-yl" ether will be added along with the ether. One more thing, while the naming of adjacent chain, we should remember alphabetical order of the organic compounds. Okay, as E becomes first. One thing we should remember while naming organic compounds within a chain, we should remember alphabetical order of the organic compounds, as E comes first and N comes after. So it will be ethyl methyl ether. Okay. Next one is ketone. Here the addition of a carbonyl group takes place within the chain as functional group. So this is the carbonyl group, C double bond O, and here two varying groups are present. Okay, so आप कीटोन में क्या करेंगे, आप जो सफिक्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं आप ऑन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और कीटोन के अंदर आपके पास दोनों जो आर हैं वो क्या हो रहे हैं, वो वेरी कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास ये मैंडेटरी नहीं है कि दोनों जो अल्काइल चेन्स हैं वो सेम हो. जैसे मैंने ऊपर भी बात की कि दोनों चेन्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, दोनों सेम भी हो सकती हैं. ओके, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3. अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो R1 है और R डैश है, ठीक है, यानी कि जो R2 है वो दोनों आपके पास डिफरेंट. और यहाँ पे देखिए आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और राइट साइड के ऊपर हमने इथाइल ग्रुप को चूज किया है. ओके, तो वाइल नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4 आपने जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको भी बीच में क्या करना है, ऐड करना है. तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन आ रहे हैं विद इन द चेन, सो इट वुड बी ब्यूटा. ठीक है, तो सफिक्स आपके पास क्या होता है कीटोन के अंदर, ब्यूटा नॉन होगा आपके पास. ओके, अगर आपके पास चेन के अंदर सिर्फ 3 कार्बन आ रहे हैं तो वो आपके पास प्रोपानोन होगा एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड में आप क्या कर रहे हैं कि कीटोन में जो आपके पास R डैश था उसको आप सिंपली रिप्लेस कर रहे हो एक हाइड्रोजन के साथ. ओके, सो एंड द सफिक्स Al, Al will be added within the aldehyde. यहाँ पे आपके पास हमने दोनों साइड्स पे राइट एंड लेफ्ट हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है, तो चेन के अंदर हमारे पास जस्ट 1 कार्बन आ रहा है. ओके, तो इट वुड बी मैथानल. मैथानल. अगर हम यहाँ पे एक और केस में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, तो वो हमारे पास, क्योंकि चेन में हमारे पास 1 and 2 दो कार्बन हमारे पास बन रहे हैं, तो इट वुड बी एथेनल. एथेनल और एसिटल्डिहाइड. एंड मैथेनल, अनदर नेम फॉर मैथेनल इज फॉर्मेल्डिहाइड. नेक्स्ट कम्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आप क्या कर रहे हो कि ये जो हाइड्रोजन हमने ऊपर ऐड किया था एल्डिहाइड में, वहाँ पे
अलॉन्ग विद हाइड्रोजन आप कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हो, एक ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं, ठीक हो गया बेटे। वहाँ पे और सफिक्स जो हम ऐड कर रहे हैं दैट इज ओइक एसिड, क्योंकि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो R को हम ले रहे हैं CH3, C डबल बॉन्ड O and H। As two carbon atoms are present in this chain C1 and C2, तो ये आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, along with the suffix, दो कार्बन है तो आपके पास एथा होंगे, एथेनोइक एसिड। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ईस्टर। ईस्टर में आप क्या कर रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने हाइड्रोजन का एडिशन किया था उसको सिंपली आप रिप्लेस कर रहे हो R डैश के साथ, यानी कि आप एक और जो वेरिंग अल्काइल चेन है वो आप ईस्टर के अंदर ऐड कर रहे हैं। ओके, सो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH, सफिक्स आ रहा है वो 8 है। हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर ईस्टर बॉन्ड मौजूद है वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, उसके एंड पे 8 ऐड करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपके पास इथानोएट है, इथानोएट के साथ हमने CH3 लगाया, यानी कि हमने एक मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, इट वुड बी मिथाइल इथानोएट। लास्ट वन इज अमाइड। अमाइड में आप क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो OR था इट विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2, आप इसको एक अमाइड ग्रुप के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब अमाइड आपके पास ये वाला जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, और NH2 ये आपके पास हो गया अमाइड, और R हमारे पास जो है वो तो अल्काइल चेन है, दैट इज वेरिंग अल्काइल चेन। ठीक है, R की जगह हम लगाएंगे CH3 लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड NH2। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस चेन आर 2, दो कार्बन है तो ये इथाइल होगी, इथाइल amide. This is the end of our lecture. We have discussed about functional groups and the type of functional groups present which are discussed in our book.